Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is quality of sound. As we learned about two of the characteristics of sound in our previous classes, so we are studying the topic of mainly characteristics of sound. We have studied about pitch of the sound. Pitch of sound is that characteristics of sound by which we can distinguish between shrill and flat or grave sound. It was due to difference in frequencies of the sounds. If two sounds have different frequencies, then their pitch will be different. Sound of higher frequency will have higher pitch and sound of lower frequency will have lower pitch. It will be grave, and sound of higher frequency less will have higher pitch and it will be sharp or shrill. Then we have studied about loudness of sound. Loudness of sound is that character of sound by which we can distinguish between two sounds of different levels or between loud and faint sound. And it depends upon the amplitude of the sound. So we can say that if we have two waves, like let this is one wave, one, two, let we have this wave, one, two, and if we have second wave, let this one with green one. If you check these two waves, let these are the waves produced in 1 second. 1, 2, 3, 4. So this is one wave, this is second wave, this is third wave, and this is fourth wave. In first case, number of waves 1 and 2. There are two waves per second. So frequency is 2. In second case, frequency is 4. So we can say that frequency of wave number 2 is greater than the frequency of wave number 1. Let's suppose that wave amplitude of both the wave is same. Let's suppose that amplitude of both the wave is same. अगर हम उनको same बना ले, then there is only difference in the frequency of the sound, frequency of these two waves. अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? क्या अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस दोनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, बिकॉज लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी इफ एम्पलीट्यूड इज सेम. दूसरी चीज़ आप देखें, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी हायर हुई उसकी पिच हायर हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वेव इज higher than frequency of one wave, so pitch of the second wave is higher than the pitch of the one wave. So we can say that हमने जो loudness and pitch पढ़े हैं, loudness depends upon the amplitude of the wave and the pitch depend upon the frequency of the wave. Both are directly related. If amplitude is higher, then loudness will be higher, directly related to square of amplitude था. बट इसी तरह से पिच हायर हुई तो फ्रीक्वेंसी हायर हुई तो पिच भी हायर हो जाएगी. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स जो हमने स्टडी की थी. आर टुडेज टॉपिक जो है वो क्या है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड. So, what is meant by quality of sound? Actually, it is that characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds जिनकी loudness भी same हो और उनकी pitch भी same हो, having same loudness and same pitch. Two sounds and same loudness and same pitch, but these two sounds originating from two different instruments. So for example, if two sounds are originating from the same instrument and they have same loudness and same pitch, इंस्ट्रूमेंट अगर सेम हो, सेम इंस्ट्रूमेंट हो और लाउडनेस और पिच भी सेम हो, देन हम ये कहेंगे कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. बट इफ़ टू साउंड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, उनमें स्टिल एक डिफरेंस होगा और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. हमारे ईयर्स, हमारा ब्रेन हम कह सकते हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड. ठीक है, अब ये जो क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है ये डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स अगरचे कि वो सेम लाउडनेस वाली हो, सेम पिच वाली हो, फ्रीक्वेंसी वाली हो, बट फिर भी वो डिफरेंट होती हैं. हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ढोल है. ठीक है, लेट आपके पास एक ढोल है और एक पियानो है. एक आपके पास क्या है? ढोल है और एक क्या है? पियानो है. अब ढोल और पियानो की आवाज़ अगर सेम लाउडनेस और पिच वाली भी हुई, देन भी आप उनमें डिफरेंस कर सकेंगे.
तो वो डिफरेंट होंगी, उनमें आपको एग्जैक्टली डिफरेंस फील हो रहा होगा। अब देखें लाउडनेस और पिच तो सेम है, तो इसका मतलब कि लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, तो ये जस्ट किस वजह से डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा ड्यू टू देयर क्वालिटी, ये उनकी क्वालिटी की वजह से डिफरेंस होगा, ठीक। So if we produce two sounds from dole and piano and both are of same loudness and pitch, but they will be sounded differently because of the new properties, different property of the instrument. This is called quality of the sound. तो ये जो quality of sound है, ये भी two sounds को distinguish करने के लिए हम use करते हैं। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब हम ये देखेंगे quality of sound यानी ये किस वजह से होती है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होती है वेव्स की। तो जैसे हमने कहा था कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होती है, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट की नेचर वगैरह पे, उसकी शेप साइज, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। एक्चुअली ये डिपेंड करती है ऑन द वेव फॉर्म, इसमें डिपेंड करती है ऑन द वेव फॉर्म ऑफ द वेव्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेव्स हों, ये दो वेव्स हैं हमारे पास, जो भी हम बनाएंगे उनका एम्पलीट्यूड हम सेम रखना चाह रहे हैं। मैं पहले से निशान लगा लेता हूँ एम्पलीट्यूड, ताकि ये सेम बने, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी हम सेम रखते हैं। लेट हमारे पास जो फर्स्ट वेव है, एक सेकंड में ये एक दो वेव बन गई, ठीक है। और जो सेकंड वेव है वो हम बनाते हैं, लेट वो एक सेकंड में वो भी दो हैं और एम्पलीट्यूड भी सेम है, एक दो। अब आप देखें जो फर्स्ट और सेकंड वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। एम्पलीट्यूड सेम मीन लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम मीन्स पिच सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम मीन्स पिच सेम है। अब इनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, तो फिर भी अगर ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनकी साउंड डिफरेंट सुनाएगी। अब इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट हो जाता है। अब जो सेकंड वेव फॉर्म मैंने बनाया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखेंगे ये लेट में इसको ऐसा वेव फॉर्म बना देता हूँ, ऐसा वेव फॉर्म मैं बना देता हूँ। वायलिन या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली, उनका वेव फॉर्म इस तरह का बनता है, ठीक है। ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन गया, साइनोसाइडल साइन थीटा की तरह है। और ये आपके पास जो नॉर्मली ट्यूनिंग फोक होता है, ट्यूनिंग फोक का वेव फॉर्म नॉर्मली जनरली इस तरह से बनता है, ठीक है। बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स को आप अगर चेंज करें तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट नॉर्मली वायलिन का वेव फॉर्म ऐसा बनता है। फिर इसी तरह आपके पास गिटार इंस्ट्रूमेंट है, गिटार भी होता है, उसका वेव फॉर्म भी आप देखें तो वो थोड़ा सा आपको इस तरह से काफ़ी चेंजिंग चेंजिंग मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। सो वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि किस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा, बट आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट, देखें एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। कहीं पे डिफरेंट पीक्स बन रही हैं, कहीं पे ये ऐसे साइनोसाइडली बन रहा है। कोई वेव फॉर्म जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। सो वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। और वेव फॉर्म क्यों डिफरेंट होता है, ये ड्यू टू डिफरेंस इन द इंस्ट्रूमेंट होता है। सो वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, ये किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू, ये क्यों डिफरेंशिएट कर सकती है। सो वी कैन से दैट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। साउंड्स के डिफरेंट वेव फॉर्म्स होने की वजह से, और उनको हम डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन दीज साउंड्स, और इस प्रॉपर्टी को क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स की नेचर डिफरेंट होती है, और नेचर या उनकी शेप साइज़, ये उनकी मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट होने की वजह से उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है, उनकी वेव फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। एंड देन उनके जब वेव फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं तो उनके डिफरेंट होने की वजह से उनकी साउंड्स डिफरेंट होती हैं। आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेदर उनकी अगरचे के इन स्पाइट ऑफ देयर सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, ठीक है। सो दिस क्वालिटी, this characteristic of sound is called quality of sound. So what is meant by quality of sound? It is one of the characteristic of sound, and it is that characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and same pitch. So that characteristic of sound is called, this is called quality of sound. Okay, so we have studied about all the three characteristics of sound up till now. One characteristic of sound was the loudness of sound. Actually, what is meant by characteristics of sound? These are different properties of sound by which we can distinguish between different sounds. So first was the loudness of sound. Loudness of sound is that character of sound by which we can distinguish between loud and faint sound, or
sounds of different levels from the same instrument. Second one was the pitch of sound, and pitch of sound is that characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and flat sound. पतली और मोटी आवाज़ में difference कर सकते हैं, and it is due to the difference in the frequency of the wave. Third characteristic of sound is the quality of sound, and in which we can distinguish between two sounds of same loudness and same pitch but originating from two different instruments, and it is due to the difference in the instruments or difference in the wave form of the waves. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. आप इनको रिवाइज करें, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर्स में भी अक्सर आ जाता है. सो यू शुड रिवाइज दिस टॉपिक एंड राइट दिस टॉपिक ऑन योर नीट नोटबुक्स. थैंक यू. गुड.